So good morning, everyone. Today, 15th of July, 2021, going to start further explanation for the chapter that is drainage. I'm taking doubts from this chapter. So first doubt was navigation, like role of river in the economy. हमारी इकोनॉमी में, हमारी नेशनल इनकम में रिवर्स का क्या रोल है? So ये important question है. We have to do this question in our notebook also. So role of rivers in the economy में आप लोग पहले points में form में लिखना चाहते हैं तो you can jot down these points also. और रोल ऑफ नेविगेशन भी मैं आपको समझा देती हूँ. ठीक है. स्टिल स्टूडेंट्स आर कमिंग. हाँ जी. रोल ऑफ रिवर्स. We come to know that river or water is integral part of our life. वाटर जो है वो हमारी लाइफ का इंटीग्रल पार्ट है because we cannot live without water. We know that 97% of the water is saline water, only 3% water is fresh water or you can say usable water with us available in the world. उसमें से भी हमारी जो है वो वाटर कंटेंट कहाँ पर है? ग्लेशियर्स में है, रिवर्स में है, लेक्स में है एंड अंडरग्राउंड वाटर है. So we have to use this water in a very judicious way, in a very, you can say, sensible way. We should not waste water. We should conserve water as much as we should, because as the growing population is increasing and dependence on all the persons are there, as water is the integral part of our daily routine life. We people believe, or we people use water. We cannot survive without water. So water is using and providing all the, you can say, benefits to us. So we have to conserve it. We have to use it, as every drop counts. हर बूंद जो है वो काउंट करती है और हमें हर बूंद को बचाकर रखना चाहिए. रोल ऑफ रिवर इन द इकोनॉमी में सबसे पहले करेंगे कि रिवर्स आर फंडामेंटल इंपॉर्टेंस टू द ह्यूमन सोसाइटी. रिवर्स आर प्रोवाइडिंग recklessly their contribution to the human person. You can write down these points if you want to write. Else then the notebook कहीं से भी आप देखेंगे तो आपको ये वाले पॉइंट ऐसे नहीं मिलेंगे. As rivers are providing contribution to the human lives, water river are the natural source of water. Rivers are natural source of water. It started from the mountains and moved toward the plains, make the plains fertile by leaving their deposits on the plain, and plain are able to produce more crops, which assure food security to the nation. So if it ensure food security, it means reduction in the poverty. It means generation of employment in the country. So overall, we can say indirectly rivers are also contributing in the life of human being. So that is why first line is rivers are recklessly giving their contribution or fundamental importance throughout the human life. Is this point is clear to everyone? Second point आता है कि they are providing all the essential services to the human. Rivers banks have attract all the settlements. अगर हम बात करें all the famous settlements like Mesopotamian settlement, Indus settlement, Harappan settlement जो कहते हैं, they all were being settled near the river valley because availability of water is being required by every person for their survival. नेक्स्ट आ जाता है रिवर बैंक्स वर बीइंग एंशिएंट टाइम्स हमसे देखते आ रहे हैं कि दे आर द सर्वाइवल ऑफ डिफरेंट सेटलमेंट. सो नेक्स्ट आता है यूजिंग रिवर. रिवर आर बीइंग यूज्ड फॉर इरिगेशन, provide the water to the crop for the growth. Number 2, river waters are being used for generating hydroelectricity. Then navigation. Now come to the navigation point. Listen it carefully. Means as a transportation.
Water, river are being used as a means of transportation. Shipping, ship, बोट, स्टीम बोट्स एक जगह से दूसरी जगह जो जाती हैं, और हमारे इंडिया में इनलैंड वाटरवेज जो हैं, एक होते हैं वाटरवेज जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं सी रूट, एक होते हैं इनलैंड। इनलैंड होते हैं देश के अंदर अंदर, सी रूट होते हैं जो इंटरनेशनल होते हैं वाटरवेज। सी रूट होते हैं इंटरनेशनल, इनलैंड होते हैं विद इन अ कंट्री। सो इनलैंड वाटरवेज आर देयर, जो कौन कौन से हैं? गंगा रिवर। गंगा रिवर में देवप्रयाग इलाहाबाद से जब वहां बिल्कुल प्लेन हो जाता है, वहां से लेकर 580 किलोमीटर तक का डिस्टेंस जो है वो प्रोवाइड करता है नेविगेशन विद इन द इनलैंड वाटर सर्विसेज। ठीक है, देवप्रयाग के बाद बोट्स के थ्रू, शिप्स के थ्रू जो है, क्योंकि रिवर का डायमीटर भी, विड्थ भी बढ़ जाती है गंगा की जाके वहां पर, और वहां पर शिप्स जो है वो सेल करते हैं, वो मूव करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस टिल वेस्ट बंगाल तक जाते हैं, फराक्का डैम से पहले पहले तक जाते हैं। So rivers are the source of irrigation. Rivers are the source of generating hydroelectricity. Rivers are the source of becoming reservoir when the dams are being constructed. Then उसके पीछे जो है lakes बन जाती हैं, like रंजीत सागर डैम एंड गोविंद सागर लेक, जो ये लेक्स हैं भाखड़ा डैम के पीछे। सो ये रिजर्वायर्स जो है वो एक्वेटिक लाइफ को, इकोलॉजिकल बैलेंस को, और इन्वायरमेंटल जो प्रोटेक्शन जो है उसको भी मेंटेन करते हैं। सो दे आर पर्टिकुलरली इन आर कंट्री, अगर हम अपनी कंट्री की बात करें तो आर कंट्री इज अ एग्रीकल्चरल कंट्री। हमारा भारत जो है ना वो एक एग्रीकल्चरल कंट्री है। अगर तुम्हें मैं बताऊं तो हमारा इंडिया जब आजाद हुआ था, व्हेन आवर इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, एट दैट टाइम 85% population was depending upon agriculture. So why they were dependent? But they were not having all the irrigation facility. They were depending upon the monsoons for irrigation, for the crop production. But slowly, steadily, these rivers were giving their benefits for the irrigation, and crop plantation was becoming as a major source or occupation for the common people. और आज के डेट में प्रेजेंट अगर हम लोग बात करें तो 60% population is still depending upon agriculture. बाकी जो है आजकल हमारे किसानों के अंदर माइंड में ये चल रहा है कि बेटा जो है वो फॉरेन भेज दिया जाए, बट स्टिल दिस इज अ सीरियस कंसर्न, वी हैव टू थिंक। हम लोग अभी कर रहे हैं रिवर का कंट्रीब्यूशन इन द इकोनॉमी। रिवर्स आर द हैविंग देयर फंडामेंटल इंपॉर्टेंस इन द ह्यूमन लाइफ। They are the major source for the survival of human beings. They are providing water for the irrigation. They provide water for the generating hydroelectricity. They are the source of navigation. They maintain reservoir on the construction of dam, provide reservoir which maintain aquatic life. They provide ecological balance. We can observe that ancient settlements, ancient previous civilizations or settlements were also being done near the river valley, like Mesopotamian and Harappan civilization. Any doubts to anyone? So as India is an agricultural country, it is only possible because of the rivers we people have. India is having number of rivers. Some rivers in India there are two types of river. अगर बात करें, one are Himalayan river and second are the peninsular rivers. कोई डाउट यहाँ पर किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज आस्क। प्राकुल, इज इट ओके? राम, नेविगेशन क्लियर हो गया बेटा? नेविगेशन ओके। एनी डाउट टू एनीवन? Okay, what is the full form of NRCP? It is being given on your page, book 23, NRCP, National River Conservation Plan. And this is also known as GAP, Ganga Action Plan, GAP, GAP.
It was initially started in 1885, were declared closed on 31st March 2000, and Steering Committee for the National Reserve River Conservation Authority reviewed the progress of Ganga Action Plan and necessary correction on the basis of lesson learned from the experience given by Ganga Action Plan Phase 1. These have been applied for the major pollution rivers in the under the NRCP, means National Reserve Conservation Plan. So here we can say that two questions are there. One is, what is Ganga Action Plan? When it was introduced in 1985. Then it was being reviewed in 2000. Then we can say National River Conservation Plan, they had made phase 2. Ganga Action Plan phase 2 start किया गया. उसके accordingly क्या करना था? It covers 152 towns. It covers 152 towns located along 27 interstate rivers in 16 states. Under this section plan, pollution abatement work are being taken up in 57 towns, and total 215 schemes of pollution removing have been sanctioned. So far, 69 schemes have been completed under this plan, and 1 million of liter of sewage is being treated as a intercept, diverted and treated. इसमें बहुत सारा पानी ट्रीट करके गंगा के अंदर छोड़ा जाता था सेकंड फेज के अंदर जो गंगा एक्शन प्लान. So here two questions are there. Ganga Action Plan phase 1, उसका time period. Ganga Action Plan phase 2, time period. Third question आता है, what is the full form of NRCP? National River Conservation Plan. ठीक है, they are providing action plan for conserving the river water. Actions इंक्लूडिंग इंटरस्टेट, मतलब हर स्टेट में, गंगा एक ही स्टेट में नहीं है, गंगा अलग अलग स्टेट्स में है, तो हर स्टेट का कंट्रीब्यूशन लेना, हर स्टेट का सहयोग लेना, हर स्टेट के साथ सपोर्ट करके नेशनल लेवल पर इसको क्लीनिंग के लिए सबके एक्शंस को कंसिडर करवाना. सो इट हैज बीन डन और 69 schemes have been completed. In that, water जो सीवेज वाटर वो है उसको ट्रीट करके मिलियंस ऑफ सीवरेज वाटर जो था दैट वाज बीइंग ट्रीटेड एंड टारगेटेड टू बी ट्रीटेड एंड मर्ज्ड विद द गंगा. इज इट ओके टू एवरीवन? यहाँ तक कोई डाउट? कमलजीत, परनीत, प्राकुल, एनी डाउट टू एनीवन? No. Okay, now come to the map work which we have to do. Map work में हमने lakes करनी है 4. We have to go with the 4 lakes. Now come to page number 19. 19 में हमें lakes कौन कौन सी करनी है पहले आप देख लीजिए. According to our syllabus हमारी lakes कितनी है? That is Wular Lake, then Chilka Lake, then Sambar Lake, then आगे पुलकित. ये हमने 4 रिवर्स लेक्स जो हैं वो हमारे सिलेबस में है. Any doubt to anyone? Jot down the names: Wular, Chilka, Sambar and Pulikit Lake. Now note down the points related to it for 1 mark. Pulkit Lake. Pulkit Lake है कहाँ पर? Do you aware from the thing, or should I display it on the map? Andhra Pradesh. Ma'am, please repeat. कहाँ पर है? Andhra Pradesh. Yes, it is in adjacent with Andhra and Tamil Nadu. यहाँ पर आ जाओ, यहाँ. ठीक है, सॉरी मैं तो मार्कर ही लगा दिया. फाइन. सो पुलकित लेक जो है वो आपकी आ जाती है इस साइड पर, यहाँ पर आ जाती है. गॉट इट? और ये जो है ये कोरोमंडल कोस्ट पे है. दिस इज अ कोरोमंडल कोस्ट. वी नो दिस इज कोरोमंडल कोस्ट.
सो यहाँ पर आपकी आ जाती है पुलकित लेक। पुलकित लेक की लेंथ कितनी है? नोट डाउन दीज पॉइंट्स। पुलकित लेक लेंथ जो है दैट इज 60 किलोमीटर, एंड विड्थ चौड़ाई जो है दैट इज 17 किलोमीटर। लंबाई है 60 किलोमीटर। जैसे कल मैंने डल लेक बताया था 27 किलोमीटर का डायमीटर है उसका, वैसे ही पुलकित का बता रही हूँ कि उसकी लेंथ जो है दैट इज 60, उसकी विड्थ जो है वो दैट इज 17 to 18 किलोमीटर्स, अप्रोक्स कह सकते हैं 17 to 18 किलोमीटर्स। और डेप्थ, लेक की डेप्थ जो है दैट इज 3 feet to 33 feet, 3 feet to 33 feet, यानी कि 13 मीटर तक। ठीक है, सो दिस इज द you can say length, breadth, width or depth of the Pulkit Lake. Pulkit Lake is here in the Andhra Pradesh and Tamil Nadu, adjacent with Tamil Nadu, at the Coromandel coast. Have you written everyone? Then second point, that is Chilka Lake. Chilka Lake कहाँ है? ओडिशा। उड़ीसा। कहाँ पर है चिल्का लेक? उड़ीसा में, नियर अबाउट महानदी के बिल्कुल नीचे, नियर अबाउट महानदी के बिल्कुल नीचे है चिल्का लेक। इसकी लेंथ कितनी है? पुलकित की कितनी थी? 16 किलोमीटर। 16 नहीं पुत्र जी, 16। पुलकित की 60, चिल्का की 64। चिल्का की कितनी है? 64। और डेप्थ जो है उसकी 13.8 और 14 फीट तक। फाइन, गॉट इट? मैम प्लीज रिपीट। बेटा जी, लेंथ इज नियर अबाउट 64 किलोमीटर एंड डेप्थ इज नियर अबाउट 14 फीट, या 4-4.5 मीटर कह सकते हो। ठीक है, देन नेक्स्ट आ जाती है वुल्लर लेक। दोनों लेक होगी, पुलकित भी होगी, चिल्का भी हो गई। 60 किलोमीटर, 64 किलोमीटर, 19 किलोमीटर तक का, 17 to 18 किलोमीटर तक का दायरा है इसका, विड्थ है, और 33 फीट तक डेप्थ है इसकी। ये है 64 किलोमीटर लॉन्ग, और इसकी विड्थ जो है नियर अबाउट, वो ज्यादा नहीं है, विड्थ इसकी कम है, गोलाई में है, ये डायमीटर है इसका। सो इसकी डेप्थ जो है दैट इज नियर अबाउट 14 फीट। नेक्स्ट आ जाती है वुल्लर लेक। वुल्लर लेक इज इन जम्मू एंड कश्मीर। वुल्लर लेक इज इन जम्मू एंड कश्मीर. It is considered to be freshwater lake in Asia. एशिया की सबसे फ्रेश वाटर लेक जो है वो है वुल्लर लेक. इट इज इन जम्मू एंड कश्मीर, और जो कि झेलम नदी के उसके कारण बनी है, झेलम नदी के कारण बनी है ये रिवर. ठीक है, ओ सॉरी, वुल्लर लेक जो है वो झेलम नदी से सोर्स वाटर जो है वो झेलम नदी है उसका. और ये वेरीज, इसका सरफेस एरिया एक जगह से दूसरी जगह कोई एक डायमीटर में नहीं है वुल्लर लेक. इट्स वेरी बिग लेक. और इसकी जो वेरीज है, इसका साइज जो है वो कहीं पर तो 30 है, कहीं 189 किलोमीटर तक है वेरीज. ठीक है, लेंथ इसकी है 16 किलोमीटर. सरफेस एरिया जो है इसका 30 to 189 किलोमीटर तक का जाता है. और डेप्थ इसकी है 46 फीट. 46 फीट काफी डेप्थ है. प्लीज रिपीट सरफेस एरिया. सरफेस एरिया वेरीज फ्रॉम 30 किलोमीटर टू 189 किलोमीटर. बहुत बड़ी है लेक.
और लेंथ इसकी बन जाती है नियर अबाउट 16 किलोमीटर। और डेप्थ इसकी बन जाती है 14 मीटर या 46 फीट। Ma'am, please repeat surface area. Varies from 30 kilometers to 189 kilometers. Okay. Vuller Lake is the freshwater lake in Asia. एशिया की सबसे फ्रेश वाटर लेक है। सोर्स इसका झेलम रिवर है। इसका सरफेस एरिया 30 से लेकर 189 किलोमीटर तक है। ये लॉन्ग कितनी है? 16 किलोमीटर लॉन्ग है। और इसकी डेप्थ कितनी है? दैट इज 46 फीट। बहुत ज्यादा गहरी है ये, 50 फुट तक चली जाती है। नेक्स्ट आ जाती है फोर्थ लेक, आ जाती है सांबर लेक। सांबर लेक जो है इट इज हेयर राजस्थान के पास, यहाँ पर राजस्थान में जयपुर से 50 किलोमीटर दूर, अजमेर से नियर अबाउट 40-50 किलोमीटर अवे। ठीक है। सांबर लेक इज लाइज इन नियर 60 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम जयपुर इन राजस्थान। Its source is river Luni and this is a salt water lake. लूनी रिवर सॉल्टी रिवर है, तो लूनी रिवर के कारण ही सांबर लेक बनी हुई है। तो सांबर लेक इज अ सॉल्टी वाटर लेक। और वुल्लर लेक जो है वो झेलम नदी से बनी हुई है। तो झेलम नदी जो है दैट इज फ्रेश ग्लेशियर से बनती है, दैट इज व्हाई वुल्लर लेक इज फ्रेश वाटर लेक। एनी डाउट टू एनीवन? So jot down the points related to Sambar. Length Sambar Lake की जो है that is near about 35 to 36 किलोमीटर। Sambar Lake length is 35 to 36 kilometers. Width चौड़ाई जो है उसकी 3 से 11 किलोमीटर तक है, क्योंकि ये ऑक्सबो की तरह बनी हुई है। तो 3 से 11 किलोमीटर तक का चौड़ा है और इसकी जो लंबाई है वो 35 से 36 किलोमीटर तक है। 35 टू 36 किलोमीटर तक की इसकी लेंथ है एंड 3 टू 11 किलोमीटर तक की इसकी विड्थ है। और डेप्थ इसकी ज्यादा नहीं है, दैट इज फ्रॉम 2 टू 10 फीट अप्रॉक्स। Any doubt to anyone? Is it clear? So four lakes we have to do. One is Puliket, second is Chilka, third is Wullar, fourth is Sambar. चारों lakes, चारों की अलग अलग 60, 64, you can say इनकी 16 किलोमीटर और इसकी कितनी है? सांबर लेक की कितनी है? दैट इज 35 टू 36 लेंथ। 60, 64, you can say here 16 और this is 35. Any doubt? हाँ जी बोलो बेटा परनी। मैम चिल्का लेक भी सॉल्ट वाटर लेक है ना? चिल्का लेक यस बेटा, इतना सॉल्टी नहीं है, लेकिन वो ब्रेस्ट मतलब ओशन वाटर कंटेंट उसमें ज्यादा है, लेकिन सॉल्टी नहीं है। ओके मैम। हाँ मैम व्हाट इज विड्थ ऑफ चिल्का लेक? हाँ जी मैम विड्थ ऑफ चिल्का लेक? लेंथ ऑफ चिल्का इज अप्रॉक्स 64 to 65. Depth is near about 14 feet. मैम विड्थ जो है दैट इज इन द स्फेरिकल राउंड शेप में है, तो उसकी विड्थ नहीं आएगी। ओके मैम। ठीक है, ये उन्हीं की आती है जो ऑक्सबो की फॉर्म में बनी होती है, उनकी विड्थ आती है। जैसे कि सांबर 3 to 11 तक के विड्थ में है, पुलकित भी है, उसकी विड्थ भी 17 to 18 किलोमीटर्स में है।
ठीक है, एनी डाउट टू एनीवन ma'am. रिगार्डिंग दीज? चारों लेक्स हो गई, उनके सारे पैरामीटर्स हो गए। नेक्स्ट नोट करिए रिवर्स हमने कौन कौन सी करनी है। इन द मीन वाइल फिल योर अटेंडेंस। रिवर्स हमने करनी है बेसिकली हिमालयन रिवर्स करनी है हमने, इंडस, सतलुज, गंगा, ब्रह्मपुत्र। हमने हिमालयन रिवर्स करनी है इंडस, सतलुज, गंगा, ब्रह्मपुत्र। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। 4 रिवर्स हमने हिमालयन रिवर्स करनी है। इंडस कहां से कहां तक जाती है? यहां से ऊपर को जाके बाहर को जाती है। आई जस्ट टेक अ चॉक so that you can understand. इंडस यहां से होती है और यहां से बाहर जाती है। दिस इज इंडस। इज इट विजिबल? देन हमने सतलुज करनी है। सतलुज रिवर कहां से जाती है? यहां से जाती है और यहां से हमारे सॉरी इधर से, ठीक है, सतलुज। दिस इज सतलुज। देन वी हैव टू गो विद गंगा। तो गंगा जो है वो यहां से जाती है और गॉट इट, ये गंगा जी जो वहां गई वो बन गई पद्मा, जो यहाँ गई वो बन गई यहाँ पर जो हमारी इंडिया के अंदर फरक्का डैम यहाँ पर आता है। देन ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र जो है यहाँ से स्टार्ट हुई मानसरोवर के और यहाँ से एंटर करके सीधा यहाँ प्लेन से। These are major 4 rivers which are being originated in the, you can say, Himalayas. Then हमने 4 next करनी है, that is peninsular rivers. Peninsular rivers हमने 6 करनी है, that is नर्मदा, तापी। कौन कौन सी करनी है हमने? नर्मदा, तापी, देन महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। ठीक है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। एज यू नो अमरकंटक से स्टार्ट होके, अब पता होगा अमरकंटक से स्टार्ट होकर ये जाती है महानदी, सॉरी नर्मदा। देन मध्य प्रदेश के इन एरिया से तापी, नर्मदा एंड तापी, देन महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी हो जाएगी। ठीक है, दिस इज नर्मदा, तापी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। अब इन सब की लेंथ बता दीजिए। I will be glad to hear if anyone will be able to tell the length of all the rivers. मैम गोदावरी 1500 किलोमीटर्स, Very good. कृष्णा 1400 किलोमीटर्स, Very good. महानदी 860 किलोमीटर्स Yes. And एंड कावेरी Kaveri 760 किलोमीटर्स। kilometers. Okay. Indus 29. 2900 1 kilometers. to 900. 2910 किलोमीटर। Ma'am, ठीक है, 200. is it okay? Ma'am, 2910. Very nice, very nice. So you all are aware from Yes, the ma'am. length also. अगर 1 mark question आ जाए, so what is GAP? अब मुझे बताओ what is GAP? गंगा एक्शन प्लान। Okay, Ganga Action Plan was Action in how many plan. phases? 2 phases. 2 phases. What is the full form of NRCP? National River National Conservation Plan. कंजर्वेशन प्लान। National River Conservation Plan. Okay, what are meanders?
How many courses are of there of a river? How many courses of there? 4 course. 2. There are 3 courses of a river. Upper course, middle course, lower course. Upper course, Himalaya mein. Middle course when it enters to the plains, and then lower course when it is going to be joined with the ocean at the end part of a river. And at that time, meanders are being created, and meanders due to the breaking with the deposits of silt, with the upliftment of river bed, because of the deposits, oxbow lakes are being created. That is why Pulkit and Chilka lakes are here. ठीक है, ठीक है. और वुलर लेक यहाँ पर आ गई. लूनी रिवर के कारण सांबर लेक यहाँ पे आ गई. I hope it is clear. So today I will send Yes, questions along with the answer. Complete your notebook properly. Fine. And send it to me, submit it to me well on time, so that we can start with the chapter next. और कल अगर हमें doubts होंगे तो I will discuss all that things with you, which I will be going to share with you today in the assignment form. Is it okay to everyone? Yes, Fill ma'am. the attendance form. And please share it again.